Hello, everyone, and welcome to another episode of Conversation with Shanila, where we explore the stories, leadership, and experiences that shape our profession. I'm Sheila Makhani, and I'm delighted to have you here today with us. One of the things I love most about project management is that while thousands of professionals earn the PMP credential every year, no two journeys are ever the same. Behind every certification is a story, a decision, a moment of uncertainty, late nights, small victories, and finally that unforgettable moment when everything comes together. Though this series is a PMP journey, we will meet professionals from around the world to hear their experiences, not just how they earned the PMP, but what they learned about themselves along the way. Today, I'm delighted to welcome Syed Adil Abbas, who recently achieved his an outstanding actual result by earning above target in all three performance domains. Adil, congratulations once again, and thank you for joining us today. Before we talk about your PMP journey, Adil, Thank you, man. Thank you so much for being us. great. Before we talk about your PMP journey, Adil, I would love our audience to get to know you a little bit better. Could you please introduce yourself? Tell us about your professional journey, background, your current role, and what led you into the field of project management. Uh, I would like to thank you for giving me this opportunity. I'm working in a bank for last 16 years. I have almost 16 years of journey in the professional banking career. I started preparing for my project management for last couple of months. So before that, I work as a credit analyst in multiple domains and operations as well, SME lending, corporate commercials, and some so on so far more of the like different departments. But currently, I'm deployed as a business process re-engineering department as a business process analyst. And for this journey, I have started as a project manager. So it's a good opportunity for me to be with you as a project management field. Thank you, Adil. It's good to know. It's always been interesting, to hear about different experiences, bring people into this profession. So now let's talk about your journey. Every journey begins with a decision. Can you take us back to the moment when you decided to pursue the PMP credential? What inspired that decision? And was there a specific moment or career goal or personal motivation that made you say now is the right time? Yes, madam. Actually, मैं like multiple domains से मेरा different domains different operations के मैं department से relate कर रहा हूँ. बट लास्ट 1 ईयर से मैं जिस प्रोजेक्ट के ऊपर डिप्लॉयड हुआ हूँ वो एक तरीके से बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है. और वहां पे जो मैंने चीज एक सीखी या लर्न की मैंने वहां पे वो यही था कि प्रोजेक्ट मैनेजर हाउ टू मैनेज योर प्रोजेक्ट, उसकी टाइमलाइन कैसी है, स्टेक होल्डर से हमें किस तरह बात करनी है, कम्युनिकेशन किस तरह करनी है. तो ये सारी चीजें प्रोजेक्ट को इनिशिएट हम किस तरह करेंगे, कोई एरर आ जाता है, कोई बग्स आ जाता है, उसको किस तरह रिजॉल्व करेंगे. मतलब एक पूरी जर्नी जो हमने वहां पे की है वो मैं ये समझता हूँ कि बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर एक अगर आपके पास ठीक है आपके पास नॉलेज है बट यू डोंट हैव एनी स्किल्स तो यू कैन बी अ गुड प्रोजेक्ट मैनेजर ऑन योर ओन फील्ड. Great. So now the decision is been made that you want to be a PMP, Adil. So once you made that decision, how Yes. did you begin your preparation? Means how did you develop your study plan while balancing your professional and personal responsibilities, right? So what approach worked best for you? मैं लाइक 9 to 6 जॉब वाला बंदा जो है लाइक द बिगेस्ट चैलेंज दैट आई से दैट डायरेक्शन इज बीइंग टू बी स्टार्टेड. I studying randomly with the without any proper plan or along with the managing the studies of 9 to 6 with the family responsibilities as well. And sometimes you very well know about the electricity and internet issues consistently difficult in my PMP journey. तो बहुत मुश्किल हो जाता है सम टाइम कि आप मतलब एक चीज आपने गोल अपना सेट किया हुआ है और इतनी सारी हर्डल्स आपके पास आ रही हो और उन सबको
मतलब एक साइड में रख के अपनी कंसिस्टेंसी के साथ अपनी अगर स्टडी को आप प्रॉपर प्लान के साथ चले तो यू हैव टू अचीव योर डिजायर्ड गोल्स। Makes sense. So, what study resources made the biggest difference during your preparation? Or were there any books or courses or simulators or communities that you found particularly valuable? Before we started started journey with the dimensions, मैंने बहुत सारे मुख्तलिफ मतलब टूल्स को यूज किया। लाइक रैंडमली एप्लीकेशंस को मैंने इंस्टॉल किया, उसके बाद काम किया, यूट्यूब्स में मैंने पढ़ा, मतलब मल्टीपल रिसोर्सेज लिए। बट पीएमपी जो है वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं, मैं समझ सकता कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस है खाली कि आपने सिर्फ क्वेश्चंस को रिसॉल्व करा और आप जो है वो सक्सेस हो सकते हैं। फिर जब हमारी डायमेंशंस के साथ या सर अतीक के साथ जो हमारी फर्स्ट मीटिंग स्टार्ट हुई थी और उसके बाद मैंने आपके साथ काम शुरू किया, तो मुझे ऐसा लगा कि जो आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, तो आप कितने ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लो, आपके जो है ना वो नहीं हो सकता। क्योंकि रियल एग्जाम के अंदर जो है ना वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आता है। वो मतलब मेमोराइजेबल अगर कोई चीज हम याद करके जा रहे हैं कुछ फॉर्मूला, Mhm. तो वो एक अलग मैटर है। बट मेमोराइज अगर हम करके जा रहे हैं तो वो मैं नहीं समझता कि हम पेपर सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि एग्जाम के अंदर ऑलमोस्ट टू बिल्कुल रॉन्ग आंसर होते हैं, बट टू बिल्कुल सिमिलर आंसर्स होते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो यू हैव टू सिलेक्ट योर रॉन्ग आंसर। आपको लगेगा कि सही है, बट वो इन दी एंड वो है वो रॉन्ग आंसर होगा। तो स्टार्टिंग जर्नी कॉन्सेप्ट क्लियर अगर जब तक नहीं होंगे तो वो शायद नहीं हो सकते। और हमने शायद हमने किए हैं, जो हमने मटेरियल यूज किया है जिसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमने अटेंड किए हैं, वो प्योरली बेस्ड करते थे बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर कि बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर यू हैव टू डू व्हाट इन दिस सिचुएशन। हमने उसको बैठ के सॉल्व किया था, हमने क्वेश्चंस भी किए, हमने रैंडमली मॉक्स भी किए। बट जो मेरी अंडरस्टैंडिंग जो आपके साथ और सर के साथ बनी थी वो यही थी कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए पहले। तो आई थिंक दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज दैट आई कैन। Great. यस। So, ये तो जर्नी की बात हुई, रिसोर्सेज की बात हुई। सो कहते हैं ना कि एवरी मीनिंगफुल जर्नी कम्स विद चैलेंजेस, राइट? So, for you, what यस। was the most difficult part of your PMP preparation? Was there ever a moment when you felt discouraged or questioned whether you could do it or not? You know, sometimes it feels I can't do it. Was there any moment, or there are many moments even when you felt that, right? So can you आई just जस्ट speak लाइक about it? मैं एक छोटी सी जर्नी मैं जरूर आपके साथ, यस आपके साथ बिल्कुल शेयर करूंगा। इफ यू रिमेम्बर दैट वी हैव कंप्लीट आवर फर्स्ट मॉक टेस्ट एंड आई Hmm. स्कोर 48% ऑन दैट टाइम। एंड हमने वो मॉक आई थिंक 2:30 AM पे खत्म किया था, लेट नाइट। आई रिमेम्बर ऑल दीज थिंग। उसके बाद मैं पूरी रात मुझे जो है ना अ, ये रियलाइज होता गया कि शायद यार पीएमपी इज नॉट फॉर मी ना। तो आई फील के पीएमपी माइट नॉट बी फॉर मी, इवन आई दो आई कुड डू इट। देन मैंने फिर नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे सर अतीक से बात करी ना कि सर मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा पीएमपी। तो आई थिंक सर ने, हमारी क्लास उस टाइम पे नहीं हुई थी, बट सर ने मुझे ऑलमोस्ट 45 to 50 मिनट मुझे सिर्फ मोटिवेट किया कि नहीं यार कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। हमने इस पे बहुत डिबेट की, लेकिन कर क्यों सकते हैं ये हमारा एक अलग एक बोला हम लोग, मतलब वो है ना कि आप जब कन्वर्सेशन में आते हैं तो बात कहाँ से कहाँ चली जाती। सर ने इतना मुझे उसमें गाइड किया ना, मोटिवेट किया कि यार नहीं कर सकते, पहला अटेम्प्ट था, हो सकता है। तो उसके बाद मेरी जर्नी जो है ना वो बहुत ही मतलब 360 डिग्री एंगल चेंज हुई। उसके बाद मैंने अपने आप से ये किया कि नहीं यार, जब सब कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट था, 48% था, मैंने सुना ये था लोगों से कि जी 70% एंड अबव होता है तो जी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट अगर आप पहले ही रेस में पहले ही स्टेप पे गिर जाओ तो फिर वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि आप जो है ना लंबी रेस में दौड़ सको। But you know, the best part is that the comeback should be strong, right? Your comeback was strong, right? यस। It was initially 40%, but in the second mock, when we sat together, I think it was in between 65 to 70%, right? And then later यस on in the इट्स last one, यस। it was more, right? So the gradually it was improving, right? So it's not about how you fall down and how deeply you fall down, but it's always been important that you know how you give your comeback, right? Because comeback always matters. So that's I think I really यस। appreciate about your journey, right? So, थैंक यू। looking back,
right now, because right now you are a PMP already, right? But you have studied about it definitely, right? You have given time to it. So if you look back, right, what study habits do you believe Yes. contributed most to your success? And how did you manage your time? And do you have any daily routine or weekly targets or another strategy that keep you consistent? Yes, definitely. Because consistency is one of the key factor. अगर आपने किसी भी चीज को, किसी भी टारगेट को आपका अचीव करना है, तो कंसिस्टेंसी के बगैर नहीं हो सकता। ठीक है। मतलब बीइंग अ फैमिली मेंबर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं और आपकी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। बट जैसे हमारा हमने टाइम शेड्यूल अपना सेट किया हुआ था, मैंने उसी को कंटिन्यू करते हुए कि हमने जब रात के टाइम जो ऑलमोस्ट हमारे पास सारी चीजें सब हम समेट लेते हैं और ऑल दैट, तो लाइक 1 आवर और वो भी 1.5 आवर इट्स इनफ फॉर स्टडी। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ रहे हैं और फोकस होके कर रहे हैं ना, तो आई थिंक 1.5 घंटा या 1.3 इज मोर देन इनफ फॉर स्टडी। बट कंसिस्टेंसी डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ करना है, लेकिन डेली करना Sounds good. So on top of it, now I have a question. K, if you begin your PMP preparation today, again, Adil, right? Is there है। यस। anything you would do differently? यस डेफिनेटली, क्योंकि जब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो उस टाइम पे, और लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम रियल सिनेरियो बेस्ड हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, अब मैंने पेपर अटेम्प्ट किया। अब नाउ आई नो के पेपर का पैटर्न क्या है, किस तरह पेपर आ रहा है ना। तो जो मेरे रॉन्ग आंसर्स उस वक्त हुए हैं या जो होने वाले हैं, तो उसको मैं अब और तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, क्योंकि अब मुझे पता चल गया कि जी एग्जाम किस पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा है। बीइंग अ रियल प्रोजेक्ट मैनेजर, व्हाट यू हैव टू डू इन दिस सर्टेन सिचुएशन, कि अगर आपके पास एक सिनेरियो आ गया है, एक सर्टेन सिचुएशंस आ गई हैं, तो हाउ टू हैंडल बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल जो है अलग से जाके या 360 आप जाके जो है ना एक किसी को फेवर दे दें, किसी टीममेट को या किसी और को। तो अगर हम प्रिपरेशन करें तो हम बहुत सारे रियल प्रैक्टिकल जो सिनेरियोज होते हैं उसको लेके फिर हम इसको हम आगे कर सकते हैं। बट वही है कि अगर बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर, मैं जो एग्जाम, अगर मैं पीएमआई की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो पीएमआई ये नहीं बोलता कि आप बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर आप क्या कर सकते हैं। वो ये कहता है कि इन दिस सिचुएशन व्हाट द प्रोजेक्ट मैनेजर हैव टू डू। तो Yes, ये सारे सिनेरियोज जो होते हैं ना, वो उस टाइम पे थोड़ी देर के लिए एलिमिनेट करने पड़ते हैं हमें, क्योंकि उस वक्त हमें लग रहा होता है यार मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, मैं ये डिसीजन लूंगा। तो hmm, समटाइम वो डिसीजन हमारा गलत होता है। यस। agree. So now let's come towards the mock exams, right? काफी mock exams दिए हैं, right? Attempt किए, practice की, right? I think we have practiced around more than 1,000 यस। questions during our interaction, ठीक है ना? यस। So, and we say that mock exams are often considered one of the most important part of the PMP preparation. So, how did you यस। approach them, right? Did they change the way you studied? यस डेफिनेटली, बिकॉज देखिए मॉक टेक्स जो होते हैं या मॉक एग्जाम्स होते हैं, वो रियल सिनेरियो बेस्ड होते हैं। अच्छा, एक मैं आपके साथ और एक रियल जो मेरे साथ सिनेरियो हुआ वो भी डिस्कस करता हूँ, ये रिलेटेड टू मॉक। मैं जब पेपर अटेम्प्ट करने बैठा, हमने मॉक टेस्ट क्यों किए जाते हैं कि आप 4 आवर कंसिस्टेंट आपको बैठना है। लाइक यू हैव ओनली 10 मिनट्स, टू ब्रेक्स। तो ऑलमोस्ट 1.5 आवर, 1 आवर, मोर देन 90 मिनट्स यू हैव टू सिट कंसिस्टेंटली ऑन द स्क्रीन। अगर हम मॉक नहीं करते, फॉर एग्जाम्पल हम एलिमिनेट कर देते मॉक को और सिर्फ प्रैक्टिस सेशन पे चले जाते हैं, तो जब रियल एग्जाम में हम बैठ रहे होते हैं ना, तो वो हमारा वो रूटीन ही नहीं है इतनी देर का बैठने का। मैं अच्छा, मेरे साथ जो हुआ, वो 2 दफा प्रॉक्टर जो है उसने बीच में इंटरवीन किया। वो क्यों? कि मुझे इतनी कंसिस्टेंट बैठने की आदत नहीं है। मैं हल्का सा थोड़ा सा हिला, क्योंकि अब आपकी बॉडी थोड़ी देर के लिए स्टक हो गई, आप बैठे हुए पेपर कर रहे हैं। मैं 45-40 क्वेश्चंस के पर पहुंचा, तो मेरी मैं थोड़ा सा हिला, मैंने कोशिश की मैं अपना को लेग को मूव करूँ ये कुछ तरह, तो सामने क्योंकि वो कैमरा चल रहा है, रियल एग्जाम चल रहा है, तो प्रॉक्टर ने मेरी विंडो को ब्लॉक कर दिया फॉर 10 मिनट्स। मैंने थोड़ा सा, मुझे हुआ शायद पता नहीं कुछ ऐसा सिनेरियो, लेकिन उसमें एक मैसेज लिखा हुआ था कि आपकी मतलब कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी सी वो हो रही है, तो प्रॉक्टर को लग रहा है शायद कोई आपको इस तरह का वो कर रहे हैं, मिस यूज कर रहे हैं। तो उन्होंने 10 मिनट्स के लिए मुझे ब्लॉक किया। उसके बाद वो पेपर रीलॉन्च हुआ।
जब मेरी 10 मिनट्स की ब्रेक हुई, मैंने जाके दोबारा उस बंदे से, जो वहां पे एग्जामिनर बैठे थे, उनसे पूछा। तो उन्होंने ही बोला कि यार आप कंसिस्टेंटली मूव कर रहे हो ना, तो इस वजह से भी प्रॉक्टर को ये शायद लगता है कि यार ये कोई ऐसी कोई एक्टिविटी में या कोई इस तरह की रेलिवेंसी में तो नहीं है। तो मॉक टेस्ट हमें प्रैक्टिस ये बताती है कि यू हैव टू सिट एटलीस्ट 60 to 65 minutes कंटिन्यूसली ऑन द स्क्रीन। तो Hmm. ये, जब तक मॉक टेस्ट हम 4 hours का पूरा अटेम्प्ट नहीं करेंगे ना, हम हमें प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी उस तरह बैठने की। तो आई थिंक हमने जो बैठे थे हम लोग तो काफी, मैं तो, क्योंकि हम तो ऑफ स्क्रीन थे, तो मैं तो कभी लेट के भी कर रहा था, कभी वैसे भी कर रहा था, बट जब रियल एग्जाम में बैठे ना, तो आइडिया हो गया कि नहीं जी, आपने सिट बिल्कुल प्रॉपरली सिट होके जो है ना अपना एग्जाम को पास करना है। Yeah, that was actually the purpose of having the full mock यस, exam, right? You get the practice of sitting at least 90 minutes or 80 minutes, then 10-minute break for stretch. Then again, you have to give the similar number of minutes to, and then again, डेफिनेटली। you will get a 10 minute of stretch. So yeah, that always been there. Okay, so let's move to the day every PMP aspirant remember, right? Take us back to your exam day, Adil. Right? How were you feeling when you woke up in that डेफिनेटली। morning? इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू आंसर दिस, बिकॉज एक दिन पहले ना, मतलब वही कि नेक्स्ट डे जब आपका पेपर होता है या कोई ऐसी एक्टिविटी होती है ना, तो एंजाइटी में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, आपको रात में नींद नहीं आ रही होती है, या आप अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हो। तो स्टार्टिंग तो नॉर्मल थी। आई रीच एग्जाम सेंटर मोर देन 45 और एन आवर, मतलब मैं 1 घंटा पहले पहुंच गया था वहां पे। अच्छा, वहां पे भी जल्दी पहुंचने का मकसद ये था कि यार फर्स्ट टाइम था, थोड़ा सा रास्ते का कोई इस तरह, तो हम पहुंच गए वहां पे, बैठ गए। अब आप बैठ गए ना, तो उस टाइम पे वो जो 1 घंटा जो मुझे गुजारना था ना, वो एक तरफ, और मेरा 4 hours का एक जो एग्जाम था वो एक तरफ, क्योंकि आपने वहां बैठना था, आपको आइडिया नहीं होता एग्जाम सेंटर का, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। एनजाइटी होती है, बहुत सारी चीजें, बार बार अपनी चीजों को चेक करना कि यार ये मैं प्रॉपर, मैंने अपना एनआईसी रखा है, अपनी जो एनआईसी वो चीजें हैं वो रखी हैं, अपनी सारी चीजें अपने रखी हैं, कोई इस तरह कोई मिसयूज तो नहीं हो रहा है कोई। आप वहां पे जा रहे हैं, आप ईमेल निकाल के ले जा रहे हैं, आपने जो आपकी जो एग्जाम सेंटर की डिटेल्स हैं वो आपके पास होनी चाहिए। तो ये थोड़ी सी होती है, मतलब आपको थोड़ी सी टेंशन देने वाली बातें होती हैं, बट बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बट ये टेंशन दे देती हैं इन केस अगर आप कोई भी चीज मिस वो कर देते हैं, जैसे मिस कर जाते हैं या कोई, तो वो थोड़ा सा हर्डल क्रिएट कर देती है एट द टाइम जब आपका एग्जाम बिल्कुल स्टार्ट होने वाला हो। Great. So now let's talk about the exam, right? How did you manage your time throughout the exam? पहले कितने मिनट ओ, अंदाजन आपके हुए स्पेंड ज्यादा हो गए थे कम हुए? How was your time management was going on नहीं, throughout the फर्स्ट exam? फर्स्ट फर्स्ट 60 क्वेश्चंस होते वो तो फुल, लाइक ऑलमोस्ट 75 to 80 मिनट्स मुझे लगा था उसके अंदर ना, फर्स्ट 60 क्वेश्चंस के अंदर, क्योंकि फर्स्ट टाइम था। अच्छा, बाय चांस मेरे साथ सीन ये हुआ कि जो शुरू के 10 क्वेश्चंस थे वो थोड़े से टफ आए, टफ इन अ सेंस के, लाइक थोड़े से आउट ऑफ द वे जाके वो आ गए, लाइक बिल्कुल प्रोसेस के थे, बट ये थे कि थोड़ा सा आउट ऑफ द वे, क्योंकि आपका अगर स्टार्ट अच्छा हो जाए ना, तो फिर आपकी जर्नी स्टार्ट चली जाती है। बट शुरू के 10 to 15 क्वेश्चन थोड़े से अगर डिफिकल्ट आ जाए ना, तो फिर आप थोड़ा सा वो कर जाते हैं टाइम उसमें। मेरा जो फर्स्ट 60 क्वेश्चन है उसके अंदर मेरा टाइम बहुत ज्यादा आई गेस लग गया था। बट ये कि आफ्टर 10 मिनट्स जब मैं दोबारा वापस आया हूँ, तो आई आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ द पीएमआई एग्जाम। और फिर मेरे जो नेक्स्ट 60 क्वेश्चन थे वो ऑलमोस्ट मेरे 65 मिनट to 70 मिनट्स में मैंने कंप्लीट कर लिए थे। तो Great. फर्स्ट इस इनिशियल स्टार्ट जो था वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ था। और उसके बाद मतलब वो ये ना कि अगर एक दो आपको, अच्छा इसमें ये था कि अगर आपको लग जाए ना कि आपने जी एक गलत कर दिया, तो वो आपका माइंड वहीं पे रहता है कि Hmm. शायद वो वाला गलत हुआ था, वो आप आगे नहीं बढ़ पाते। तो ये थोड़ा सा फर्स्ट 60 क्वेश्चन में मेरे साथ हो गया था, बट ये कि मैंने इसको आगे, हम आगे जब 60 सबमिट हो गए, 10 मिनट से ब्रेक ले लिया, देन आई फोकस ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एग्जाम। Makes sense. Chale, that's a good thing. So then finally tell us about the moment when you clicked submit, right? What was going through your ओह mind? वाह, And what was your reaction ओए when मैं, you saw that no, you had passed with above target in all three domains later on? अनफॉरगेटेबल। फर्स्ट मैंने तो, लाइक, मैं तो सबमिट नहीं कर रहा था, बट मैंने बोला यार ये, अब मुझसे ना सबमिट वाला जो ऑप्शन है ना, आपने 180 क्वेश्चंस कर लिए,
Hmm. 10-10 मिनट्स के 2 ब्रेक भी ले लिए। फिर आपको प्रॉक्टर ने बीच में आपको 2 दफा रोक भी दिया। अब नाउ यू आर द फाइनल जर्नी ना, कि आपको क्लिक करना है और अपना एग्जाम सबमिट करके अपना रिजल्ट सामने देखना है। दिस इज वन ऑफ द, लाइक मैं कहता हूँ कि ये सबसे बड़ा मूवमेंट होता है आपके लिए, क्योंकि आप प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हो काफी टाइम से एग्जाम की, और आप एग्जाम में भी बैठ गए, अब आपके सामने सारी चीजें आ गई हैं। नाउ यू आर जस्ट स्टेप अवे टू योर सक्सेस। सबमिट कर दिया और मैंने हेड डाउन करके नीचे करके बैठ गया। अब मैंने, क्योंकि अब वो रोल हो रहा है ना, सर्चिंग कर रहा है एकदम से उसने जो है ना, एकदम उसके सामने एक आया कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव पास्ड ऑल द अबव 3 टारगेट स्कोर्स, अबव टारगेट इन ऑल 3 मॉड्यूल्स। थोड़ी देर के लिए तो मैं मतलब शॉक हुआ कि शायद ये मेरा नहीं है, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, और आप बीइंग अ टीचर आप मुझे ज्यादा इसमें बता सकती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। लिटरली मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था कि मैं ऑल दी लाइक अबव टारगेट इन ऑल 3 डोमेन्स में ले लूं। मेरा फोकस जो था वो ये था कि बिजनेस अक्यूमेंट्स में जो है ना, उसमें तो फुल टारगेट ले लो, क्योंकि वन वो तो आसान है, 8% है, नॉर्मली हम उसको कर लेते हैं। बट रिमेनिंग में अगर टारगेट भी आ जाए ना तो चल जाएगा। बट वो जो एक मोमेंट आता कि अबव टारगेट आया, और मतलब इट सीम्स दैट वाओ, बस वो था। और बस वहां पे एक और 2-3 और थे, बट एग्जाम हो रहा था तो ज्यादा वहां पे शोर शराबा नहीं कर सकते थे। बट ये कि हाँ, उसको हमने फिर घर आके सेलिब्रेट किया, फिर आपके साथ सेलिब्रेशन हुई। सर अतीक को सबसे पहले मैंने मैसेज किया कि सर ये थोड़ी जर्नी हुई है, और इस तरह सर से बात हुई, आपसे Great. बात हुई फिर। तो ये एक बड़ा अनफॉरगेटेबल मोमेंट था मेरे लिए। Great. So, इस पूरी जर्नी से, राइट, आदिल, if you would like to discuss any common mistakes that future PMP aspirants should avoid, if you can suggest, जो भी prepare कर रहा है, right? यस, Anything which you suggest, ना, these are the common mistakes which they can avoid and it can ठीक helpful for है, यस डेफिनेटली। सबसे पहले ना कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर आप एग्जाम पे अटेम्प्ट करने जा रहे हैं ना, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे फोकस करने से ज्यादा, अगर आप फोकस करें ना टॉपिक्स के ऊपर या उनके कॉन्सेप्ट के ऊपर, तो वो ज्यादा बेटर होता है, इन द सेंस कि आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम स्टेक होल्डर की बात करें तो, या रिस्क की बात करें, तो अगर मुझे पता ही नहीं है कि कितने टाइप के रिस्क होते हैं और मैं क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे जा रहा हूँ रिस्क से रिलेटेड, तो वो एक थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है इन द रियल सिनेरियो एग्जाम में। क्योंकि एग्जाम जब पीएमआई एग्जाम ले रहा होता है ना, तो पीएमआई मल्टीपल डोमेन्स को मिक्स करके आपसे कुछ सवाल पूछ रहा होता है। तो वो आपसे रिस्क की बात करते करते अचानक से स्टेक होल्डर की तरफ चला जाएगा। आपको कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा कि स्टेक होल्डर क्या है और रिस्क क्या है, तो फिर आप जो है ना वहां पे फिर फंस जाएंगे। तो ये एक छोटी सी एडवाइस है कि एटलीस्ट आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलें, और मॉक एग्जाम जितना दे सकते दे, या आप उसको ना उस रियल सिनेरियो में अपने आप को जितना बिठा के अपने कर सकते हैं ना, वो ज्यादा उसमें अपने आप को बिठाएं। क्योंकि 4 आवर्स कंटिन्यू बैठना, तो इट्स अ वेरी चैलेंजिंग रादर देन गो फॉर प्रिपरेशन एंड ऑल दैट। Great. So, Adil, if someone is watching us today and people are watching, right? And they are feeling overwhelmed by the PMP syllabus and they are preparing right now. ठीक है ना? तो what advice would you give them? एडवाइस मेरी सिर्फ यही है कि फोकस रहे, और लाइक चैलेंजेस आएंगे बहुत सारे, जैसे मेरे साथ बहुत सारे चैलेंजेस आए थे। तो बट ये कि आप मोटिवेट रहें कि यू कैन डू इट। जब सब कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ, तो हर बंदा कर सकता है। Great. Adil, thank you for sharing your journey with such honesty, to be very honest, and openness, because I believe today's conversations remind us that earning the PMP credential is all about, much more than passing an examination. It's about commitment, it's about discipline, it's about believing in yourself, even when the journey feels challenging, right? So, congratulations once again on this remarkable achievement, Adil. And थैंक thank you यू। for inspiring so many current and future PMP professionals through your story. I'm sure many are listening to you right now and they are attempting it in next 2 to 3 days. So it's going to be very helpful for them.
and to not overwhelm themselves. So, to everyone who joined us today, thank you for being part of this conversation. I hope Adil's journey has encouraged you to take the next step in your own PMP journey with confidence. And remember, every professional's path is different. Don't compare your journey with someone else's journey, right? So, stay consistent, keep learning, trust your preparation, and believe in yourself. If you enjoyed today's conversation, please share it with someone who is preparing for the PMP exam. And don't forget to subscribe to our YouTube channel, Conversation with Shanila, so you never miss an upcoming episode of Conversation with Shanila. Until next time, I'm Sheena Makhani. Thank you for joining us. Keep learning, keep leading, and keep the conversation going. Thank you.